Welcome to lecture 4 of topological dynamics. So today we'll be taking up the topic expansive homeomorphism on compact metric spaces. So अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म. मैंने एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की बात की थी. ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था. तो मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म एक होम्योमॉर्फिज्म जो कि x टू x पे जा रहा होगा, जहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करते हुए बताया था कि यहाँ पे हम कैपिटल x कॉमा डी यहाँ पे मीट्रिक स्पेसिस पे बात करेंगे. ठीक है, और बेसिकली हमें मीट्रिक स्पेस की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में डिस्टेंस फंक्शन का यूज़ होता है. ठीक है, आप देखोगे. सो अ होम्योमॉर्फिज्म is said to be an expansive homeomorphism. So if you remember, मैंने बताया था कि अगर एक ऐसा डेल्टा मिल जाए, if there exists a delta strictly greater than 0 such that for any two pair of points in the space which are distinct, I am able to separate them. That means there exists n in integer such that distance h and x, h and y is strictly greater than delta. And then we say delta is an expansive constant for h. राइट, ये हमने बात की थी लास्ट टाइम. और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स भी बताए थे. हमने R with the usual metric dx, y equal to mod x minus y में बात की थी that the dilation maps from R to R defined as f of x equal to alpha x, where this alpha is different from -1, 0 and 1. This is an expansive homeomorphism. If you remember, हमने डिस्कस किया था और हमने दिखाया था कि एक एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म होता है, राइट? एंड हमने बात करी थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की, and that was if you have any isometry h from x to x, sorry, h from not x, here we are talking about r. तो ध्यान देना, आइसोमेट्री हमने यहाँ पे r के ऊपर बात की थी कि अगर r में कोई भी आइसोमेट्री है then it is not expansive homeomorphism. ठीक है, ये एक्सपेंसिव नहीं होगा, हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, इसका पूरा प्रूफ किया था हमने. तो ये 2 बात अच्छे से याद रखना. और आइसोमेट्री की हेल्प से ही हम यहाँ पे देख सकते हैं that f from r to r such that f of x equal to x और f of x equal to -x, ये सारे आइसोमेट्री वाले मैप्स हैं. और the translation map like f of x equal to x plus a. So these all are not expansive homeomorphism. All right, these all are not expansive homeomorphism.
सो बस इतना छोटा सा रिकैप आई वांटेड टू गिव। देखो, अब हम अपनी जो भी स्टडी है एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म की, उसको हम मीट्रिक स्पेस से और पर्टिकुलर केस में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे अब हम कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसेस पे अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अब मीट्रिक स्पेस से हम अपनी स्टडी को कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसेस पे ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखा गया कि जब हम कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस लेते हैं, इफ आई कंसिडर कैपिटल X कॉमा this D to be a compact metric space, then my expansive homeomorphism shows some property. Okay, this is compact metric space. तो अब हम क्या करेंगे? So we will study some properties of expansive homeomorphism. Some properties of expansive homeomorphism on compact metric space. So let me write MS, okay, for short form. All right. Now let's start with the very first result, okay? So let me mark it as point number 1. So this result says, let capital X comma D be a compact metric space. I'm writing MS, and H be an expansive homeomorphism. Then this result says that if you will have a look at the fixed point ka set, then it is going to be a finite set. Okay, so this thing to be highlighted, fixed H is finite set for an expansive homeomorphism on a compact metric space. Again, I highlight this thing, on a compact metric space. All right, so now let's have a look at its proof, and it's pretty easy if you know two results, these two results which I will be using. So first of all, I will start again. So we'll go by contradiction. Okay, so let on contrary fix H be an infinite set. तो मान लेते हैं कि जो फिक्स H है ये एक इनफाइनाइट सेट है. All right. Now since the space is compact, and fixed H is, okay, I'm writing like this. You should not be writing like this, but I'm writing it for short form. Okay, so क्योंकि कैपिटल X कॉमा D कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है और फिक्स H एक इनफाइनाइट सेट है, हेंस फिक्स H has a limit point, say सम x in capital X. तो इस पर्टिकुलर चीज़ की इंट्यूशन आती है बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी से. एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट. ओके,
हर एक इन्फिनाइट सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट होता है। तो एक्चुअली जो सेट है वो इन्फिनाइट है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेस है उसके कॉम्पैक्ट होने से इस सेट के पास, इन्फिनाइट सेट के पास एक लिमिट पॉइंट आएगा, ठीक है। सो दैट इज द इंट्यूशन। now we'll be using, so first of all let करो कि delta be the expansive constant for H. Let delta be the expansive constant for H जो हमें given है। Now क्योंकि कैपिटल X is T1 स्पेस, why is it so? ये कैपिटल XD एक T1 स्पेस क्यों होगा? क्योंकि ये T2 स्पेस है। हर एक मीट्रिक स्पेस एक हाउस डॉर स्पेस होता है, तो हाउस डॉर एंड T2 implies T1, सो इसलिए कैपिटल XD is a T1 स्पेस एंड सो देयरफॉर क्योंकि कैपिटल X एक T1 स्पेस है, therefore BD, so if I consider this ball centered at X and with radius delta by 2, half of the expansive constant, intersects fixed H at infinitely many points. So this is basically due to capital X being T1, fix H at infinitely many points. So now what I will do, I will choose 2 points x1, x2 in the intersection BD x delta by 2 intersection with fix H such that x1 is not equal to x2, such that these 2 points are distinct. Okay, now क्योंकि this implies जो distance है x1 का x से that is less than delta by 2, distance x2 का x से less than delta by 2, and that further implies distance x1 का x2 से, ठीक है, so that is less than equal to x1 का x से plus x with x2, and that is nothing but less than delta by 2 plus delta by 2, which is equal to delta. So what I am getting, that distance between the 2 points जो हमने क्या किया, fix H, ठीक है, fix H और this ball के intersection में से कोई 2 points पिक किए हमने, x1 और x2, ठीक है। So their distance between them is strictly lesser than delta, and also as x1, x2 they are in fixed H, so what will be Hn x1, क्योंकि आप देख सकते हैं h of x1 is x1. Now if I consider h square of x1, so it is h applied on hx1, so this is hx1 is x1 and hx1 is again x1, so that's why for any n it is true that hn of x1 will be x1, क्योंकि x1 fixed point में आ रहा है, ठीक है, and similarly hn of x2 is x2, okay. So this implies that for all n in integer, basically I am able to get these 2 points x1, x2 in the space capital X such that x1 is not equal to x2, and for all n belong to integer, if I consider distance hn x1, hn x2, ठीक है,
which is, as you have observed, nothing but distance between x1. x2 is coming out to be strictly lesser than delta, and it is not coming out to be strictly greater. ठीक है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा, जो कि मुझे मिलना चाहिए था फॉर सम एन. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, एंड दैट इज अ contradiction to the fact that delta is an expansive constant for h. क्योंकि अगर डेल्टा एक्सपेंसिव कांस्टेंट होता तो फॉर दीज टू पेयर ऑफ distinct point मुझे एक ऐसा n, there exist some n in integer मिलता, such that the distance, this hn x1 hn x2 must be strictly greater than delta. लेकिन for all n मेरे पास यहाँ पे जो जिसमें हम दिखाते हैं कि एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं है ना, दैट तो मुझे वही वाली डेफिनेशन मिल रही है यहाँ पे, है ना. So that means delta, okay, so यहाँ इस कंडीशन से मुझे पता चल रहा है कि डेल्टा एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट नहीं हो सकता एच का, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस में हमने ले रखा था कि डेल्टा, वी कंसिडर्ड दैट डेल्टा, क्योंकि एच एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म था तो हमने डेल्टा को उसका एक्सपेंसिव कांस्टेंट माना था. सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. ओके फाइन. अब हम देखते हैं कि एक रिमार्क है हमारे पास विच सेज, यहाँ पे द कंडीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस इज नेसेसरी. यानी कि ये रिजल्ट जरूरी नहीं है कि होल्ड करे जब मैं कंडीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस को रिमूव कर दूं. सो लेट अस सपोज मैं एक मीट्रिक स्पेस ले रही हूँ यहाँ पे z विद d, यहाँ पे d यूजुअल मीट्रिक mod x minus y है, and I have this example which is the identity homeomorphism. So it is a map from z to z where x goes to x. You can easily check it is a homeomorphism being continuous bijection with inverse continuous. Okay, so is, and in fact this is an expansive homeomorphism with expansive constant delta in this. So if I pick any delta which is in this interval, it will act as a expansive constant for this homeomorphism. So let me show how does it work. So for that, let us pick any two elements in the space. Here capital X is Z, in the space Z, such that X is not equal to Y. Then I need to show that there exists some n. So obviously n, there exists n equal to, मैं 1 ही ले लेती हूँ, belong to integer such that distance hn(x) hx ही हो जाएगा ना, n1 ये हमने, hy will be, this distance is d of x comma y will be strictly greater than delta. Why does it hold? Because reason है इसका, ये डिस्टेंस है दो इंटीजर्स का. ठीक है, say we have 1 2 3, we have 0 and we have -1 over here, -2. ये है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स जो कहीं भी z में कहीं भी हो सकते हैं. लेकिन अगर मुझे दो इंटीजर्स को सबसे पास में देखना हो, मिनिमम डिस्टेंस देखना हो दो इंटीजर्स के बीच का, तो वो हो सकता है ऐसे, जब वो
एकदम एडजेसेंट हो, है ना, बिल्कुल बगल में हो, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम दो इंटीजर्स का, वो हो सकता है 1, और हमने जो डेल्टा पिक किया है वो तो कैसा है, लेसर देन 1। सो ऑब्वियसली डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा इस डेल्टा से। डू यू एग्री विद दिस? सो इस वजह से any delta which is in this interval will act as an expansive constant, and hence this identity which is from z to z, ठीक है, आइडेंटिटी मैप ऑन z इज एन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म। यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगी, अभी हमने देखा था आइडेंटिटी फ्रॉम r to r where x is mapped to x, this is not एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म, क्योंकि ये एक आइसोमेट्री था और कोई भी आइसोमेट्री R पे एक एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं बनता, इसलिए ये भी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं है। लेकिन ये इंटीजर पे जब मैं आइडेंटिटी लेती हूँ, दिस इज एन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म। सो एक ऐसी इंट्यूशन रखना कि आइडेंटिटी मैप कभी भी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं हो सकता इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्पेस। अब देखो, लेट मी लिंक इट विद द इंट्यूशन जो मैंने आपको दी थी थ्योरी ऑफ एक्सपेंसिवनेस से। सो ऐसी क्या वजह रही कि ये एक्सपेंसिव बना लेकिन ये नहीं बना, ठीक है। तो वजह ये रही क्योंकि यहाँ पे z में आप देखो आपके पॉइंट्स पहले से ही सेपरेटेड है, ना वो कभी क्लोज थे ना वो कभी क्लोज आए, यस और नो। तो आपको उनको सेपरेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी सेपरेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो जो पॉइंट्स है वो क्लोज भी हो सकते हैं, है ना, एंड हियर वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू सेपरेट देम, ठीक है। तो इसको जो हमने दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने दिखाया था दैट फॉर ऑल डेल्टा, ठीक है, तो उसको लिखते हैं दैट फॉर गिवन डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हमने कैसे दिखाया था, फॉर गिवन डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हमें हमेशा पेयर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे इन द स्पेस R such that x is not equal to y, and if you remember हमने ये पॉइंट्स दिए थे डेल्टा बाई 2 and माइनस डेल्टा बाई 2, such that for all n in z, if I consider distance, this, let us call it h, so hnx, hny, and क्योंकि आइडेंटिटी मैप है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एच एन एक्स कंसिडर करेंगे सो दैट विल बी दिस डिस्टेंस मॉड एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल मीट्रिक है। सो दिस will be delta by 2 minus delta by 2, so it is delta and it is not strictly greater than delta, ठीक है। So in this way we showed that it is not expansive homeomorphism. All right, now जो अभी हमने रिजल्ट किया है उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइए कि दिस होम्योमॉर्फिज्म जो कि क्लोज 0 1 से क्लोज 0 1 पे है, which is nothing but the identity, okay, where x is being mapped to x, is an expansive homeomorphism or not? और यहाँ पे आप रिजल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि what is this close 0 1? So this is a compact metric space
सो व्हेनेवर आई सी कि देयर इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, तो मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए ये वाला रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दैट जब भी मेरे पास कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा और उस पे कोई भी मेरे पास एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म होगा h फ्रॉम x टू x, देन उसके जो फिक्स पॉइंट होंगे, सो दैट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्हाट इज द फिक्स पॉइंट, सो इट इज द होल क्लोज 0 1, ठीक है, एंड दिस इज क्लियरली एन अनकाउंटेबल सेट। एक फाइनाइट सेट तो है नहीं, तो क्या मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि H इज नॉट एन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म? ये मैंने कैसे बताया? रिजल्ट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट यूज करके। इफ P implies Q, देन नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P। तो अगर मुझे पता है कि कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे कोई भी एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म एक खास प्रॉपर्टी रखता है कि उसका फिक्स एज फाइनाइट ही आएगा, तो अगर फिक्स एज फाइनाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। सो दैट इज दैट सिंपल। ओके, अब हम एक रिजल्ट देखेंगे जो कि है, let me use some. So this result is that composition of two expansive homeomorphism need not be expansive। अब हम देखेंगे कि दो एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म का कंपोजिशन एक्सपेंसिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई विल बी यूजिंग जो अभी मैंने आपको रिकॉल कराया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिकॉल किया था हमने कि R से R पे कोई भी डायलेशन मैप वेयर Hx इक्वल टू अल्फा एक्स टाइप इज एन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म। तो आप समझ सकते हैं दिस Hx इक्वल टू 2x, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैट अल्फा मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम -1 1 एंड 0। सो हम समझ सकते हैं कि ये जो दो मैप्स मैंने लिखे हैं दे आर डायलेशन मैप्स फ्रॉम R टू R, ठीक है, इसलिए ये दोनों एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म है, राइट। दे बोथ आर एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म, बट एक्चुअली what is their composition? So if you will have a look at their composition, it will be nothing but the identity map, right? And we know that this identity on R is not an expansive homeomorphism. So हमने अभी क्या देखा कि दो एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म का कॉम्पोजिशन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है कि दो एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म का कॉम्पोजिशन एक्सपेंसिव बने if my metric space is, so let me write expansive homeomorphism के लिए EH need not be expansive homeomorphism even if कैपिटल X, D एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस हो। अगर मैंने मीट्रिक स्पेस को अपना कॉम्पैक्ट भी ले लिया तब भी कॉम्पोजिशन ज़रूरी नहीं है ऑफ टू एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म, एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म ही बने, ठीक है।
composition of two homeomorphism will be homeomorphism, but expansive का composition expansive हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर द सेम. ठीक है, इसे याद रखना. तो इसे मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है, so here the space is 1 over n and 1 minus 1 over n. ठीक है, these type of elements where n belong to natural number. All right, now clearly first of all you can notice two things, that capital X is compact, being closed and bounded. closed क्यों है? क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट्स जो कि 0 और 1 है वो इसी के अंदर है. यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा 0. ठीक है, when you will put value, इनिशियल वैल्यूज ही रहेंगी फॉर n इक्वल टू 1. अब तो यहाँ पे हीने-बोडेल थ्योरम के अकॉर्डिंग एनी सबसेट इन Rn is compact if and only if it is closed and bounded. Now second, X is not connected नहीं है ये, since only connected set in R are the interval. और ये क्लियरली एक इंटरवल तो नहीं है. अब जो होमियोमॉर्फिज्म हम देखने वाले हैं जिसे हम एक्सपेंसिव शो करेंगे, तो लेट मी राइट दैट. सो वी हैव होमियोमॉर्फिज्म फ्रॉम कैपिटल X to capital X such that h of 0 is 0, h of 1 is 1 and h of x equal to x plus, जिसका नाम है राइट शिफ्ट. This is called right shift operator. ठीक है, इसे हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं. तो लेट मी फर्स्ट स्केच कि इसके पॉइंट्स कैसे दिखेंगे. सो वी हैव दिस. ठीक है, 0 होगा 1 होगा, ये हम देख चुके हैं. अब देखो दोनों में ही अगर आप n इक्वल 2 रखोगे तो वो आपको हाफ देगा. ठीक है, अब फर्दर पहले मैं 1 over n को देखती हूँ. ठीक है, 1 over n में इफ आई पुट 3 आई विल गेट 1 over 3. इफ आई पुट 4 आई विल गेट 1 over 4. और बाकी पॉइंट्स मुझे 0 के बहुत करीब लेते जाएंगे. ठीक है, और 1 minus 1 over n में अगर हम देखेंगे, so for n equal to 3 it will be 1 minus 1 over 3 which is 2 by 3 which will be here, and for n equal to 4 it will be 1 minus 1 over 4 which is 3 by 4 which will be here, and आगे मैं पॉइंट्स लूँगी तो वो मुझे धीरे धीरे 1 के करीब लेते जाएंगे. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने स्केच किए हैं इस वाले स्पेस के. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल H वी विल मतलब मेक अस सेटिस्फाइड विद दिस दैट H एक होमियोमॉर्फिज्म है. ठीक है, वी विल कन्विंस आवरसेल्व्स. ओके, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली H इज 1 1 and it is on 2 also, because if I take any element it will be mapped to its next element, right? And if I take any element here then its inverse, मतलब ऐसा कोई element such that h of x is that element, so it will be nothing but x minus. ठीक है, एक previous element हो जाएगा उसका, and it is continuous by sequential criteria, क्योंकि whenever xn converges to x it would imply h of xn will converge to h of x. So you can actually check it
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं कोई भी सीक्वेंस लूँ जो कि x पे कन्वर्ज कर रही है, अब आप सोचो जो मेरा स्पेस कैपिटल X है उसमें तो 2 ही लिमिट पॉइंट्स हैं, एक 0 और एक 1। तो मैं कोई भी सीक्वेंस लूँगी तो या तो वो 0 पे कन्वर्ज कर रही होगी या 1 पे कन्वर्ज कर रही होगी। और जब आप h ऑफ xn लोगे तो वो क्लियरली या तो वो 0 पे ही कन्वर्ज करेगी और 1 पे, अगर इधर 1 पे कन्वर्ज कर रहा था तो वो इधर 1 पे ही कन्वर्ज करेगी। ऑलराइट, यू कैन चेक इट नाउ। सो it is a homeomorphism. Being a continuous bijection, H is a homeomorphism. Being a continuous bijection from a compact space to a Hausdorff space. Compact. तो हमने कैपिटल X compact देखा था अभी, to Hausdorff space. यहाँ पे if I haven't specified the metric, so आप समझ सकते हैं metric वही that usual metric ही है, space या ओके। और हर एक मीट्रिक स्पेस में आपको बता ही चुकी हूँ हाउसडॉर्फ होता है, सो इसलिए इट इज अ होम्योमॉर्फिज्म। now this is my claim that delta, which is in 0, 1/6, is an expansive constant for h। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगी कि ये expansive constant होगा for h and h is hence an expansive homeomorphism. So this is my claim. So let us pick any two pair of points the way we do x y। ठीक है, अब देखो अगर मैं कोई भी दो पेयर ऑफ पॉइंट्स पिक करती हूँ तो 3 केसेस हैं, या तो वो 0, हाफ इंटरसेक्शन विद x इस पार्ट में होगा। ठीक है, या तो वो हाफ 1 इंटरसेक्शन विद x पार्ट में होगा। ठीक है, या फिर एक ऐसा केस होगा कि x एक पार्ट में से आ रहा है और y दूसरे पार्ट में से आ रहा है। ठीक है, यही केसेस होंगे, तो हर एक को हम अब कंसिडर करते हैं। तो देखो अगर लेट से हमारे पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट इस वाले हाफ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर पॉइंट्स हैं ये दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे बताओ, दैट इज 1/6। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी अगेन 1/6। अब हमें बाकी डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है आगे जो डिस्टेंस होंगे वो डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो डिस्टेंस क्या होगा और मैं मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं निकाल सकती, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि डिस्टेंस बेसिकली विल टेंड टू 0। ठीक है, तो मैं अपना काम इसी से ही चलाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब अगर मेरे पास ये ही दो पॉइंट्स थे x और y, तो उनके बीच का डिस्टेंस 1/6 है। ठीक है, एंड डेल्टा इज स्ट्रिक्टली लेसर देन 1/6, सो तब तो हमारे पास आ जाएगा कि d ऑफ hx एंड hy इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा। सो यहाँ पे n जो था फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये ओके इससे रिमूव नहीं कर सकते, सो इसे काम चलाते हैं। लेट मी पिक सम अदर कलर। ओके, अब लेट से मेरे पास कोई और पॉइंट्स हैं, लेट से 1/4 और यहाँ कोई पॉइंट था। ठीक है,
सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप ऑन शिफ्टिंग इट, क्योंकि जो जितनी बार मैं इसमें एच अप्लाई करूंगी इट विल गेट शिफ्टेड टू इट्स राइट. इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी विल गेट शिफ्टेड टू इट्स राइट. ठीक है. सिमिलरली एक और बार एच अप्लाई किया, इट विल गेट शिफ्टेड टू इट्स राइट, और ये पॉइंट भी विल गेट शिफ्टेड टू इट्स राइट. तो इससे क्या होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये 1/4 वाला जो राइट वाला पॉइंट था ये 1/2 पहुंच जाता है, और जो दूसरा पॉइंट था लेट से वो कहीं भी है. ठीक है. इट कुड बी एट 1/3, इट कुड बी एट 1/4. 1/3 तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि हमने दूर लिया था थोड़ा, बट आप समझिए थोड़ा कि वो पॉइंट की प्लेसमेंट जहां भी होगी उसका जो डिस्टेंस रहेगा इन दोनों पॉइंट्स का अब वो 1/6 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 1/2 से 1/3 एडजेसेंट पॉइंट का डिस्टेंस 1/6 है, तो और दूर तो वो 1/6 से बड़ा ही डिस्टेंस होगा. सो for the number of shifts I have done for that particular n, now the distance dh and x, h and y will be strictly greater than delta, क्योंकि डिस्टेंस अभी हमने देखा बड़ा आ रहा है 1/6 से, और डेल्टा तो छोटा हमने वैल्यू ली है 1/6 से. Right? So we can write that in the very first case there will exist, in this case there will exist some n in n union 0 such that dh and x, h and y will be strictly greater than delta. That means at some point of time I will be able to separate those points. Here also, अब आप यहाँ पे let me first write and then I'll explain. So यहाँ पे हमें z माइनस में मिलेंगे पॉइंट्स. ठीक है. For negative integers it will work. Why is it so? Again, let me take some other color. So if I have my point 1/2 and 2/3, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है. h equal to 1 के लिए हमारा काम हो जाएगा. That the distance between hx, hy is definitely strictly greater than delta because this distance is 1/6 and delta is less than 1/6. ठीक है. So तब तो कोई दिक्कत नहीं है. Now अगर हमने पॉइंट लिया है let's say somewhere 3/4 and somewhere else. ठीक है. कोई पॉइंट let's say यहाँ पे कहीं पॉइंट लिया है, so I will keep on shifting it 1 time then 2 time. here जैसे 2 times हम यहाँ पे पहुँच गए until it reaches 1/2. now I know कि 1/2 से ये पॉइंट कहीं 3/4 के भी बाहर है let's say. तो obviously जब ये डिस्टेंस है 1/6, ठीक है, तो इसके ये पूरा डिस्टेंस तो ग्रेटर देन 1/6 ही बनेगा. सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट इज फॉर सम n जितना मैंने शिफ्ट किया है, बट यहाँ पे n नेगेटिव होंगे. सो फॉर दैट लेट मी राइट, आई मीन आइदर आई कैन राइट इट टू बी -n अगर आप ऐसे समझ पाते हैं, और वी कैन सिंपली टेक इट टू बी n where n is in z minus and union 0. ठीक है. so for this negative n, क्योंकि अभी हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है ना, तो we will get this to be strictly greater than delta. अब अगर ये बात अभी तक आपके माइंड में नहीं आई है, so let me put this कि this h जो हमने h लिया है राइट शिफ्ट ऑपरेटर,
from x to x such that h of 0 is 0, h of 1 is 1 and h of x is x plus, तो ऑब्वियसली इसका जो इनवर्स है जो कि तो एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्शन है ये, सो इसका इनवर्स इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. सो लेट मी कॉल इट बाय जी. तो इसका इनवर्स है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर LSO, right shift operator RSO. Okay, so this is g of 0 is 0, g of 1 is 1 and g of x is x minus. Now here if I have h की power minus n, ठीक है, so it is nothing but h inverse की power n, or you can consider it to be you can consider it to be h inverse की power minus n. Now h inverse is simply g, so it is nothing but g की power n. So you are basically composing g with g n number of times, or in other words आप एक पॉइंट को n नंबर ऑफ टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं. g की पावर n का मतलब उस पॉइंट को n नंबर ऑफ टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट करना, और h की पावर n ऑफ x मतलब उस पॉइंट को राइट में n नंबर ऑफ टाइम्स शिफ्ट करना. ठीक है, सो आई थिंक ये समझ में आया होगा. हाँ, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट एक्चुअली. सो लास्ट पार्ट इज एक्चुअली वेरी ट्रिवियल, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में भी आ गया होगा अभी तक, क्योंकि वी हैव ओके. तो कोई भी अगर मैं पॉइंट लूँगी एनीवेयर, लेट्स से हेयर, एंड एक पॉइंट लेट्स से हेयर है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ये जो मेरे पास पॉइंट थे 1/3 और 2/3, इन दोनों के डिस्टेंस से तो बड़ा ही होगा, और इन दोनों का डिस्टेंस इज 1/6 प्लस 1/6 विच इज 1/3, तो 1/6 से तो बड़ा ही है. तो ये पूरा डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स हमने पिक किए हैं, एक इधर से एक इधर से, हाफ के एक पीछे से एक हाफ के आगे से, तो उन दोनों का डिस्टेंस 1/6 से तो बड़ा ही होगा, राइट. तो उसके लिए सिंपली फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ही यहाँ पे you will get this, that h, this nx and h and y will be strictly greater than delta. ठीक है. Now so we have shown कि ये एक एग्जाम्पल है कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस का, और जिसपे हमने देखा एक एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म, ठीक है, विच वॉज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और उसके साथ साथ इसका इन्वर्स भी विच इज़ द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड दे बोथ आर एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म. जैसे हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर देखा है, बिल्कुल लगभग सेम आर्ग्यूमेंट से ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को भी आप दिखा सकते हो. इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव ऑन एक्स. नाउ माई पॉइंट वॉज, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म इज, I mean it need not be expansive, and it is true even if your space capital X comma D is a compact metric space. So यहाँ पे अभी हमारे पास एक compact metric space ही था, this which was this 1/n, 1 minus 1/n, n belong to natural number, and D was the usual metric, D of X comma Y is equal to mod of X minus Y. So this was the compact metric space that we had. और यहाँ पे हमें दो एक्सपेंसिव होमियोमॉर्फिज्म मिले, एक है H, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इट वाज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर RSO, ठीक है, और एक हमें मिला G विच वाज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और दोनों का अगर मैं कॉम्पोजिशन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फ्रॉम X to X, right. So this is say H composed with G, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स थे ना, इसलिए.
लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो दैट माई क्लेम इज दैट this is not an expansive homeomorphism. Can you think why it is not expansive homeomorphism? And the hint is हमने आज एक ही रिजल्ट किया है अभी तो this is not an expansive homeomorphism क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एक्स कॉमा डी एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है. अगर मान लीजिए ये एक एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म होता तो इसका फिक्स एच here the fixed identity which is the set capital X, it must be a finite set, but it is an infinite set, so that means it is not an expansive homeomorphism. Okay, so all right, so हमने अभी तक देखा as summary, हमने अपनी स्टडी स्टार्ट करी. We shifted from just metric spaces to compact metric spaces. अब हमने compact metric spaces पर अपनी स्टडी को शिफ्ट किया है और इस पे we are looking at expansive homeomorphism. और हमने देखा कि कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे अगर हमारे पास एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म है देन उसके जो फिक्स पॉइंट का सेट होता है इट इज़ अ फाइनाइट सेट. सो आई कैन राइट कार्डिनैलिटी ऑफ फिक्स एच इज फाइनाइट. ठीक है, ये हमारा सबसे पहला रिजल्ट था जो हमने आज देखा. सेकेंड हमने रिजल्ट देखा composition of two expansive homeomorphism need not be expansive. और ये हमने R with D में f of x equal to 2x, g of x equal to x by 2 और कैपिटल x with दोनों में यूजुअल मीट्रिक ही है with h of x equal to your right shift operator and g of x equal to left shift operator. इन दोनों से हमने देखा. ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है. एंड वन मोर थिंग, इसी में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस इज नेसेसरी. क्योंकि यहीं अगर मैं z, t पे आइडेंटिटी होम्योमॉर्फिज्म ले लेती हूँ सो दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंसिव होम्योमॉर्फिज्म. ये मैंने दिखाया था और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फिक्स पॉइंट्स हैं सो दैट इज होल ऑफ z एंड इट इज नॉट अ फाइनाइट सेट. ठीक है, सो द रिजल्ट डज नॉट होल्ड ट्रू इफ यू रिमूव दिस कंडीशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस. ठीक है, so here we end this lecture. Hope you liked it.